ایک لخت جگر اور ایک خاندان کی سپہ سالار بی بی. کون بھلا؟ حضرت سیدہ زینب رضی. جناب زینب جب پیدا ہوئی تھی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے تو مجھے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بچی کا نام رکھو. تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے رکھے ہیں. کہا حضور تو سفر پہ ہیں. فرمایا آئیں گے تو نام رکھیں گے. جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت امام زین العابدین کی مختلف روایتوں میں مختلف عمر آئی. یہ دو خاندان کے بڑے بچے تھے. خاندان کے یہ دو بڑے بچے تھے. میرے دوستوں یہ جو ایک اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کروں. پہلے یہ ہوتا تھا پہلے کہ خلافت روحانی بھی اور سیاسی بھی ایک ہوتی تھی. امام حسن تک ایک رہی. روحانی خلافت بھی اور سیاسی خلافت بھی ایک رہی. مسئلہ تھوڑا باریک ہے. تھوڑا سا آپ کو میرے بات غور سے سننی پڑے گی. پہلے خلافت ایک ہوتی تھی روحانی بھی اور سیاسی بھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی کام بھی کرتے تھے مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر اور ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانیت کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے. اللہ اللہ بھی سکھاتے تھے. لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے, جمعہ بھی پڑھاتے تھے. سارا کچھ ہوتا تھا. جناب امام حسن تک یہ کام رہا. حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, جناب علی مرتضیٰ اور امام حسن تک یہ سلسلہ رہا. پھر خلافت دو حصوں میں بٹ گئی. ایک ہو گیا سیاسی خلیفہ جو حکومت چلائے اور ایک ہو گیا روحانی خلیفہ جو لوگوں کو اللہ اللہ بتائے. وہ جو خلافت تھی نا روحانی وہ آج تک آ رہی ہے. صوفیاء کے ذریعے, علماء کے ذریعے, نیک اور پارشاہ لوگوں کے ذریعے وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں. وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں, پھر اپنا خلیفہ بناتے ہیں, پھر وہ اللہ اللہ بتاتا. یہ وہ ہے خلا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت نے بلایا نا اپنے پاس. امام زین العابدین نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا, میں جاؤں گا. عبد المالک بن مروان نے بلایا اور امام زین العابدین کو کہا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا. آپ نے فرمایا اس کی وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بہت ہے, لوگوں کی توجہ بہت ہے, دل کھینچے چلے جاتے ہیں. امام زین العابدین نے فرمایا سارا زمانہ بھی میری طرف آئے, پھر میں بادشاہ کے دربار میں بادشاہ بزرگوں کے پاس آئے تو ان کی عزت بڑھتی ہے, اور اگر نیک لوگ بادشاہوں کے دروازوں پہ جائیں تو ان کی عزت گھٹتی ہے. فرمایا میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا کہ امام مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی. امام زین العابدین سے کہنے لگے مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی کہ بادشاہ میں ہوں لیکن راشا آپ کے پاس ہوتا ہے. عجیب تماشا ہے کہ لوگوں کی تلواریں میرے ساتھ رہتی ہیں, دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے بعد ایک کٹیا میں آپ رہتے ہیں, کٹیا میں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سورج بھی چڑھتا ہے تو آپ کو سلامی دے کے چڑھتا ہے, اور چاند بھی نکلتا ہے تو حسین کے بیٹے کے قدم چوم کے نکلتا ہے. امام زین العابدین مدینے سے باہر چلے گئے, ڈیرا لگا لیا, عمر بھر اسی جگہ. نام تو علی اوس تھا نا آپ کا, لیکن زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت. میرے امام نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا تو باز آ جا, میں حسین کا بیٹا ہوں, مجھے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے دے. اب میں تخت خلافت پہ بیٹھ کر نہیں, میں چٹائی پہ بیٹھ کے دین پڑھاؤں گا. اب میں فرش زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں گا. امام زین العابدین کو خلیفہ عبد المالک بن مروان ہوا پتہ کیا تھا؟ تھوڑی سی تاریخ بتا دوں. یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا, وہ 40 دن تک رہا. میں نے 10 محرم کو بتایا تھا. اس نے کہا میں اپنے باپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا تھا, چھوڑ کے چلا گیا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کیونکہ مکہ اور مدینہ اور حجاز کے لوگوں نے انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا. جب یزید کے بیٹے نے خلافت چھوڑی تو وہ پورے ملک کے ایک جو ہے وہ امیر بن گئے. ان کے درمیان ہی مروان نے سازش کی, مصر اور شام پہ اس نے اپنا تسلط جما لیا. مروان مرتے وقت اپنے بیٹے عبد المالک بن مروان کو بنا گیا امیر. عبد المالک بن مروان بڑا ظالم, بڑا خونخوار, بڑا بد تہذیب آدمی تھا. امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ آپ کو آنا پڑے گا. آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں آؤں گا. اس نے امام زین العابدین کو گرفتار کرایا. بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے, بالخصوص امام کشیری نے رسالہ میں لکھا, گرفتار کرایا, ہاتھوں میں بیڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. امام زین العابدین جس طرح نکلے تھے نا کربلا سے اور دمشق آئے تھے گرفتاری کے عالم میں, اور پھر دمشق سے مدینے آئے تھے, اسی عالم میں پھر گرفتار کرایا. اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کے سامنے جب امام زین العابدین پہنچے
तो आपने कहा कि तूने देखा है ना मेरे बाप के कातिलों का क्या अंजाम हुआ था, तूने देखा है मेरे बाप के कातिलों का, बाद आ जा। उसने कहा कि यजीद के पास ताकत थी, उसने आपको गिरफ्तार करा लिया था, अब मेरे पास ताकत है, मैंने भी गिरफ्तार करा लिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा आपके पास ताकत है तो दिखाइए, आपके पास है ताकत तो दिखाइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया तुझे कहा चैलेंज न कर, मैं दरवेश हो गया हूँ, एक तरफ लग गया हूँ, एक कोने में जाके बैठ गया हूँ, मदीने से बाहर जाके मुझे डेरा लगाया, बस मुझे अब छेड़ मत, मुझे अपना काम करने दे, मुझे लोगों को दीन सिखाने दे, अल्लाह अल्लाह बताने दे, तू जान, तेरी हुकूमत जाने, तेरी सल्तनत जाने, मैं तेरे काम में दखल नहीं देता, तू मेरे काम में दखल न दे, मुझे अल्लाह अल्लाह करने दे, अल्लाह अल्लाह कराने दो। कहने लगा मेरे पास ताकत है, मैंने गिरफ्तार कर लिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ और पांव में बेड़ियां थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान से निकला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तीसरी दफा जब आपकी जुबान से अल्लाह निकला, सारी बेड़ियां टूट के जमीन पे गिर गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उठने लगा, फरमाया बैठ जा जमीन पे। खलीफा जमीन पे बैठा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले। मुझे न कहना रवायत ज़ईफ है, रवायतें ज़ईफ होती हैं, अकीदे मजबूत होने चाहिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पलटे और पलट के कहने लगे ताकत पहले भी हमारे पास थी, ताकत आज भी हमारे पास है, जब रब कहता है हम इस्तेमाल नहीं करते और जब कह देता है तो हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बस अल्लाह की रजा पे राजी है। जब अल्लाह कहता है तो इस्तेमाल करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन के भतीजे जनाब अली के पास 3 साल रहे थे, वो तो कट गए सारे, लेकिन मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अगरचे हुकूमत नहीं ली लेकिन दिलों पे हुकूमत करते रहे, दिलों पे। यही खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, देखो कहते हैं जादू हो जो सिर चढ़ के बोले, और हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। पता होता है हमें सच क्या है झूठ क्या है। तवाफ़े काबा हो रहा है, तवाफ़े काबा, एक औरत बहुत बड़ी, उसने काबे में भी आके जुल्म करने शुरू कर दिए, लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। एक बात याद रखना, मैं गया हूँ उम्रे पे, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, लोग वहां जाके भी बाज नहीं आते, धक्के मारते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, वो अल्लाह का घर है। अगर फजल ज्यादा है तो वहां गजब भी बड़ी जल्दी हो जाता है। वो बीबी बाज नहीं कहती थी मैं बहुत बड़े अमीर की बीवी हूँ, खबरदार, तो करीब आया तो हजर अस्वद के करीब गई तो हजर अस्वद ने पकड़ लिया, दबोच लिया, पकड़ लिया, छोड़ता ही कोई नहीं, चिमट गई साथ, बुलाओ लोगों को, बड़ा कुछ किया, लेकिन हजर अस्वद छोड़ता। अल्लाह को हज की तौफीक दे, आमीन तो कह दे, अल्लाह को उम्रे पे ले जाए। ये हजर अस्वद पता बंदे वो जाके बहादुरी दिखाते हैं। मैं जब पढ़ा सटे 5-7 बंदे, मैं फिर चुमदा रहा बड़ा चुप, एक अकलमंदी की थी, अकलमंदी वाली बात है। वहां जाके हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं वहां जाके जानवरों का भी अदब करो। वो खुदा रसूल के मेहमान में धक्के देते रहे हो, तो अकलमंदी है, ये कोई बहादुरी नहीं। अगर सूडान वाले करते हैं, ईरान वाले करते हैं, तो वो जाने, उनका रब जाने, उनकी अमल जाने। हम तो वहां जाके जानवरों का भी अदब करेंगे, एहतराम। नहीं मौका मिलता तो न मिले। मेरे हबीब ने फरमाया दूर से हाथ लहरा के चूम लो, हजर अस्वद क़यामत वाले दिन तुम्हारे ईमान की गवाही दे देगा, तुम्हारे ईमानदार होने की गवाही देगा। बीबी चिमट गई साथ। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान से कहा कि वो बहुत बड़े रईस की बीवी, अब छुड़ा। सारी जिंदगी तख्त पे बैठ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुखालफत तू करता रहा है, अब छुड़ा। नीचे उतर आया तो बीबी के खामन को कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन के पास चले जाओ, अगर हल है तो उसके पास है, अगर कोई इलाज है तो उसके पास है, उसके पास जाओ, मैं छुड़ा सकता। उधर जाओ, उधर वो है दरवाजा, वो है जनाब अली का पोता, वो है इमाम हुसैन का जानशीन, वो बैठे हैं। ज़ैनुल आबिदीन तेरा तो सारा घर करबला में कट गया था, तेरे पास तो रहने को मकान तक नहीं बचा था, खून की नदियां बह गई थी, और ये क्या मामला है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत और सूरत लोगों को बताती है कि अब भी अगर मोहब्बतों की वजह से दिल झुकेंगे तो हमारे खानदान की तरफ ही झुकेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने हुजरे में बैठे, कहा जनाब एक बीबी हजर अस्वद के साथ लग गई, आप आइए।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैंने सुना है रईस की बीवी है, लोगों की तंग करती है, छुड़ा लेगा? उन्होंने कहा हजरत जी वो भी आया हुआ है, वो कहता है अगर छुड़ा सकता होता तो पहले भी छुड़ा लेता, मेहरबानी करे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे, उनके साथ गए, उस बीबी से जाके कहने लगे तू तौबा करती है? तौबा करती है? कहने लगी करती हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ उठे, लफ्ज क्या है? क्या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ? लफ्ज क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ सुनो, दुआ पर मैं मौला तू जानता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? रावी कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान पर लफ्ज है या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ। बीबी धड़ाम से पीछे गिरी और कहने लगी अल्लाह अकबर, धड़ाम से पीछे गिर गई। अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ। एक वो थे जो मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, मिटते हैं आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। एक वो थे जो मिट गए और एक ये मेरे इमाम का साहबजादा है। और मेरे दोस्तों वो जो बात मैंने पहले कही ना, ये अकड़े रहे, ये जालिम अकड़े रहे, मर गए। मेरे इमाम का ये साहबजादा, एक साहबजादा मदीना मुनव्वरा के एक कोने में, एक नुक्कर में सारी जिंदगी। लोग कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल ये था, नमाज शुरू करते इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि भूल जाते सारा जमाना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई है, छोटा बच्चा आपका छोटा साहबजादा करीब सोया हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे, आग लग गई, बच्चा करीब सोया, लोग आए, शोर मच गया, आग बुझाते रहे, बच्चे को उठा के ले जाते रहे। नमाज के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, फरमाया ये क्या है, ये खाक किस किस्म की? मैं कहा हज़रत जी घर में आग लग गई थी आपको पता ही नहीं? कहा क्यों क्या हुआ? कहा हम सारा जमाना आग बुझा रहा था, आप नमाज पढ़ रहे थे। फरमाया तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं नाना मुस्तफा की उम्मत पर दोज़ख की आग बुझा रहा था। तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं हुजूर की उम्मत के लिए दोज़ख की आग बुझा रहा था। तुम दुनिया की बुझाते रहे, मैं दोज़ख की बुझा। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, वो सारे मिट गए। और ये इमाम कैसी आजिज़ी, कैसी इनकिसारी। हजरत इमाम हसन बसरी ये खलीफा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के भी, और खलीफा है हजरत इमाम बाकर के भी। इमाम बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक उनके पोते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि रात का सन्नाटा था, काबे में उस वक्त इतना राश नहीं होता था, मैं करीब ही ठहरा हुआ था। आधी रात का वक्त एक नौजवान के रोने की आवाज आई, या अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो चीखता। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था अपने उजरे में, काबे के करीब ठहरा हुआ था। फरमाते हैं कि मेरी उस नौजवान की आहोजारी की वजह से मेरी आंख खुल गई, उसकी तड़प की वजह से मैं उठा। और फरमाते हैं कि मैंने सोचा बहुत बड़ा कोई गुनाहगार आ गया है। फरमाते हैं कि वो क्या कहता है, जब मैं उठा हूँ काबे के करीब गया हूँ कि जाकर तसल्ली देता हूँ, तो उसकी जुबान से जुमला निकला, कहने लगा या अल्लाह मुझे कयामत में जलील न करना, ऐ अल्लाह अगर मेरे अमल अच्छे नहीं तो मुझे कयामत के दिन अंधा करके उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने क्या जवाब दूंगा। फरमाते वो नौजवान तड़पता है, रोता है। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि मेरे पहुंचते पहुंचते वो इतना बुलंद आवाज से तड़पने लगा कि बेहोश होकर जमीन पे गिरा। और फरमाते मैं करीब गया, उस नौजवान के करीब गया तो बड़ी खूबसूरत खुशबू मुझे आई। फरमाते मेरे दिल में ख्याल था तसल्ली दूंगा कि बेटा ठहर जा, मैं भी दुआ करता हूँ, तू भी दुआ कर, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ कर देगा। फरमाते हैं जब मैंने उस नौजवान के चेहरे से जुल्फे हटाई, गर्द साफ की, तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। ये तो इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है, ये तो इमाम हुसैन के लख्त जिगर, अलीउल मुर्तजा के जिगर पारे, जनाब सैयदा फातिमा के नूर नज़र है। ये तो हजरत शहर बानो शहजादी के बेटे हैं। इतनी आहोजारी, इतनी तड़प, इतनी बेचैनी, इतना अल्लाह से ताल्लुक। हजरत हसन बसरी फरमाते तो कदमों पे गिरा, पांव चूमे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख खुली तो कहा हसन बसरी ना कर, तो बुजुर्ग है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठ के बैठ गए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मेरी आंख निकल गई, आंसू मेरे बह गए। मैंने कहा ज़ैनुल आबिदीन कहाँ से दिल लेके आए हो तुम लोग,
اور کہاں سے संवारा है खुदा ने तुम्हारे खानदान को। सारा कुछ दे भी देते हो अल्लाह की राह में, सारा कुछ लुटा भी देते हो, सारा कुछ कुर्बान भी कर देते हो, अपने लिए रखता कुछ नहीं, और फिर भी माफिया ही मांगते फिरते हो, फिर भी माफिया ही मांगते फिरते हो, फिर भी रोते फिरते हो, फिर भी बारगाह खुदाबंदी के अंदर आफेदारियां करते रहते हो। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि वो जमाना मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का देखा। मेरे दोस्तों, वो तो मिट गए, अकड़े रहे ना, मिट गए। करबला के बाद वो मिट गए, मेरे इमाम को मिटाने वाले। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरे इमाम का एक साहबजादा बचे था, लेकिन उन्होंने रूहानी खिलाफत का आगाज कर दिया। पूरी दुनिया में मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैज है, जिस्मानी भी है, रूहानी भी है, इल्मी भी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जिंदगी पूरी गुजार दी कोने में लग के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसी सियासी काम में कभी मुदाखलत नहीं। हजरत इमाम जाफर सादक का जमाना आया तो फिर बादशाह ने बुलाया इमाम जाफर सादक को, और ये इमाम जाफर सादक वो बुजुर्ग है कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफर सादक के मुरीद है, उनके मुरीद है, उनके खलीफा है। हजरत इमाम जाफर सादक को बुलाया, और जब सैयदना इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह रदियल्लाहु अन्हु पहुंचे, आपने शानदार लिबास पहना, शानदार लिबास पहना, और आला किस्म का जुब्बा पहना, आला किस्म की पगड़ी बांधी, हाथ के अंदर असा पकड़ा, और हजरत इमाम जाफर सादक रदियल्लाहु ताला ने कच्चे मकान से निकले, लेकिन जरा बावकार होके निकले। दरबारे बादशाह, दरबारे खिलाफत में पहुंचे, अपनी खुंडी को, अपनी छड़ी को हिलाया। मैं क्यों बुलाया मुझे? वो बादशाह जिसने कहा था बुलाओ जरा, पता करता हूँ क्यों मेला लगा रखा है। फिर भी बादशाह डरते रहते हैं, फिर भी डरते हैं कि अगर इन रूहानी लोगों ने इशारा किया तो सारी दुनिया इनके पीछे निकल पड़ेगी। बुलाओ, क्यों मेला लगाए रखा है? जब बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह ने कहा क्या बात है, क्यों बुलाया था मुझे? कहने लगा हुजूर गलती हो गई। आज के बाद इमाम जाफर सादक बाहर निकले तो बादशाह के हवारी कहने लगे तू बड़ी बातें करता था, डिंगे मारता था, बढ़ के मारता था, बुलाओ इमाम को पूछ लेता हूँ क्या हुआ। कहने लगा यार पता नहीं क्या बात है, जब नहीं होते तो बात निकलती है, जब सामने आ जाते हैं तो मुंह के अंदर से जुबान बोलती नहीं है। जब सामने आते हैं तो क्या रोब है, क्या रोब है। असल उसे समझ नहीं थी कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत इमाम जाफर सादक बाहर निकले तो आपका खादिम घर जाकर कहने लगा इमाम साहब आला किस्म का लिबास, लोग बातें कर रहे थे, इतना बड़ा कीमती लिबास, लोग गुफ्तगू कर रहे थे। तो हजरत इमाम जाफर सादक ने कमीज उतारा, नीचे टाट का लिबास था, फरमाया ये जो ऊपर पहना है ये मखलूक को दिखाने के लिए है, और जो अंदर पहना है वो रब को दिखाने के लिए है। अंदर अल्लाह को दिखाने के लिए टाट का है, लेकिन मखलूक को दिखाने के लिए मैंने आला लिबास पहना है। इनके दिल में ख्याल ना आए कि रसूल पाक के अहले बैत शायद कमजोर हो गए हैं, इसलिए डरते और सहमे हुए आते हैं। मेरे नबी के खानदान ने उस वक़्त से लेकर ता तमे आखिरी आज तक एक पूरा किरदार अदा किया है। सादात का दीन में एक पूरा किरदार रखा है, तहरीर के मामलात में, तकरीर के मामलात में, तदरीस के मामलात में सादात का पूरा किरदार रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ कभी सैयद गौसे आजम की शक्ल में आए, और कभी सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की शक्ल में आए, और कभी सैयद अली हजवेरी दाता गांज बख्श की शक्ल में आए, और कभी ये सैयद हजरत शाह आले रसूल मारफ रवी की शक्ल के अंदर आए, और कभी ये सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी की शक्ल में आए। ये सादात आते रहे, अपने अपने दौर में चमकते रहे, अपने अपने दौर में दीन का फरीजा सर अंजाम देते रहे। इन्होंने फिर एनाने हुकूमत वालों को कहा कि ठीक है, अगर तुम समझते हो कि इस तरह हमें दीन नहीं फैलाने देते तो हमें अल्लाह ने तौफीक दी है, हमें अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह ने हमें रूहानियत दी है, हम उस रूहानी तर्ज के साथ दीन फैलाएंगे। मेरे दोस्तों, अगरचे कुव्वत और इक़्तिदार भी हमेशा इन्हीं के पास रहा। करबला में जो भी आया, आप देख लीजिए ना, यजीद के 14 बेटे बताए जाते हैं, कोई भी नहीं कहता मैं यजीद की औलाद में से हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक ही बचे थे ना करबला में। आपको गली गली सैयद मिलेंगे, नगर नगर सैयद मिलेंगे, जगह जगह रसूल पाक की औलाद मिलेगी। मेरे दोस्तों याद रखना, जो जुल्म करता है और जुल्म में बढ़ता है वो बचता नहीं, उसका नाम मिट जाता है, उसका किरदार नफरत की अलामत बन जाता है।
जिंदगी आप भी गुजार रहे हैं, वक्त मैं भी बिता रहा हूँ। याद रखना, ख्याल रखना, अगर जालिम बनोगे तो मिट जाओगे, अगर जालिम बनोगे तो खत्म हो जाओगे, अगर जालिम बनोगे तो तुम्हारा नाम लेना लोग पसंद नहीं करेंगे। जुल्म का निशान बन के ना रहना, मोहब्बत की अलामत बन के रहना। अगर कभी मार भी खानी पड़ी तो वक्ती तौर पे खा जाना, थोड़ी देर के लिए मार खा के देखना। कभी कभी मार खाने में भी बड़ी इज्जत हुआ करती है, कभी कभी मार खाने और बर्दाश्त करने में भी बड़ा वखार होता है। कभी ये भी करके देखो, इसमें भी एक जायका है, इसमें भी एक लुत्फ है। मेरे अजीजों, जो जुल्म करेगा नहीं रहेगा, जो जुल्म करेगा अगर कितने भी उसके यहाँ औलादे हो जाएं उसका नाम नहीं चलेगा। जो मोहब्बत करेगा, जो मार खाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बड़ी मार खाई, दाता अली अजमेरी ने हिंदुओं से बड़ी मार खाई, हजरत गौस पाक जिलानी को बड़ा सताया गया। ये मार तो खाते रहे लेकिन पैगाम हक पे डटे रहे। इसे मार खानी आ जाए, मार खानी, बल्कि मुल्ला रूमी फरमाता है जिसे कटना आ जाए वो बच जाता है, जिसे कुर्बान होना आ जाए उसे इज्जत मिल जाती है। जो बर्दाश्त करना सीख जाता है वो मोहब्बत की अलामत बन जाता है। मैदान करबला ने ये सबक दिया कि अगर वक्ती तौर पे मार खानी पड़ी तो जरा खा के देखना, लेकिन खाना हक के रास्ते में, खाना हक के रास्ते में। और एक और बात भी ज़हन के अंदर रखिए, जरूरी नहीं किसी जगह पे कसरत हो जाए, ज्यादा हो जाए तो वो हक की अलामत ही हो। हमेशा कसरत हक की अलामत, इत्तबिउ सवादिल आज़म वाला मामला दूसरा है, लेकिन कसरत हमेशा सदाकत की अलामत नहीं होती। यजीद के साथ थे तो बहुत ज्यादा, लेकिन कभी भी दिल के साथ उन्होंने यजीद की सपोर्ट नहीं की। थे बहुत इमाम हुसैन के साथ, उस वक्त तो थोड़े थे, लेकिन जरा आज तक देखिए कितने हैं जो इमाम हुसैन से प्यार करते हैं, मैदान करबला से लेकर आज तक। और फिर किसी ने कहा था ना, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। फिर देखना सुबह कयामत तक कितने हैं। हक के नाम पे डट जाओ, अगर तुम एक भी हुए, दो भी हुए, 10 और 12, 14 भी हुए, रहना हक पे कायम रहना। मार खा के देखना, इसमें भी बड़ी लज्जत है। जुल्म से बचना, जुल्म बहुत बड़ा ऐब है, जुल्म बहुत बड़ी बीमारी है। लग जाएगी तो नाम वो निशान मिटा देगी, खत्म कर देगी सफाई हस्ती से जालिम को। अल्लाह में हर किस्म के जुल्म से बचाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।